चलो तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, जिसका नाम है ब्रिज बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 में सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है। चैप्टर नंबर 4 में कुछ भी दिया नहीं है अबाउट ब्रिज बॉन्डिंग। 10-11 में सिर्फ एज अ कैरेक्टरिस्टिक दिया है और डायरेक्ट दे के ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे हम थोड़े डिटेल में ये पढ़ेंगे ब्रिज बॉन्डिंग। ये जो ब्रिज बॉन्डिंग है वो पहले तो पॉसिबल कब होता है। सो फॉर दैट we will take one example, and the example is of BH3. Okay, so first of all we will study about the bonding for the boron B. Boron has atomic number 5, electronic configuration helium-2, 2s2 and 2p 1. Okay, and now this electronic configuration is for ground state. Now when boron is getting excited, so at that time we will write star, and this is excited state. So in excited state, helium has electronic configuration He2, 2s1, and here this electron is transferred. Again, this electron is transferred from 2s to 2p, so that here we will get 2s1 and 2p2, and we know that here there are 3 electrons which are unpaired. So at that time 3 hydrogen atoms will share 1 electron. So at that time 1 orbital is empty. So after making 3 bonds with 3 hydrogen atoms, boron is still hungry for the electrons because 1 orbital is empty. Okay, so this is the funda. So BH3, 2 moles of BH3 are combined together to give B2H6, and the name of this B2H6 is diboron. So this is the main fundamental. Again, see this BH3, 2 BH3 are combined together to give the B2H6. Is that clear? To get the B2H6. And how? Because boron in a ground state, it has electronic configuration 2s to 2p1, and when it is got excited, so at that time boron has 3 unpaired electrons, and then it can make 3 bonds with 3 hydrogen atoms by sharing 1 electron, and we are getting BH3. But here 1 orbital is empty, so that boron can still make the bond. Still boron make the bonds, and how many? 1. अब चलो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, चलो हम वो देखते हैं. See, here I am writing B. It contains 3 hydrogen, and before that, first of all tell me which type of hybridization is occurred here in BH3. In BH3, which type of hybridization is occurred? sp2, 1s and 2
2 p ऑर्बिटल्स, टोटल 3 ऑर्बिटल्स हुई ना, दैट मीन्स BH3। ओके, तो यहां पे होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो ये हुआ इसका फंडामेंटल। नेक्स्ट थिंग, हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एटम। ओके, तो चलो इससे आपको यह पता चला होगा कि बी बोरॉन, यहां पे उसके पास टोटल 3 हाइड्रोजन एटम्स है एंड 1 एम्प्टी ऑर्बिटल है। ओके, चलो उसके लिए मैं यहां पे बॉक्स ड्रॉ कर देता हूं। दूसरा BH3 में यहां पे ले रहा हूं। ओके, अब दोनों बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 बॉक्सेस है दोनों बोरोन के पास, देख लो। ओके, इतना हुआ। तो अब होगा क्या वो ध्यान से देखो। हियर दिस BH bond contains 2 bonding electrons. This BH bond also it contains 2 bonding electrons, and then remember this, that here this bonding pair is attracted by this empty orbital, ओके, एंड दिस बॉन्डिंग पेयर, जनरली आपने तो अभी तक यही पढ़ा था क्या, कि जनरली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है वही शिफ्ट होगी। यहां पे तो बॉन्डिंग पेयर यहां पे शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स दिस एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। ओके, तो यहां पे वन टाइप ऑफ एक्सचेंज। अनदर थिंग, यहां पे ओवरऑल एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक होके शिफ्ट नहीं हो रहा है, जस्ट अट्रैक्ट होगा। ओके, और इससे क्या होगा अब वो ध्यान से देखो। So due to this here, this type of arrangement is seen, that boron, hydrogen, boron, hydrogen, hydrogen, these are in one plane. Here hydrogen, dotted line means, याद करो dotted line का मतलब क्या होगा, डॉटेड लाइन का मतलब क्या होगा, इनसाइड ऑफ द प्लेन, मीन्स ये नॉन प्लेनर सब्सटेंस है। BH3 इज अ प्लेनर, BH3 का शेप क्या होगा वो तो पता है हमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो फिर BH3 का शेप होगा प्लेनर ट्राइंगुलर। ओके, तो ये प्लेनर सब्सटेंस है, लेकिन 2 प्लेन्स क्रॉस कनेक्टेड होंगे। ओके, again dotted line means all the BH bonds are actually similar but not the bridge bonds, but जो outside जो ये टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल मतलब जो लास्ट में होते हैं वो, तो जो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो यहाँ पे ये बॉन्डिंग शिफ्ट हुआ ना। अब यहाँ पे इस टाइप का ब्रिज बॉन्डिंग को हम कहेंगे क्या पता है, वो ध्यान से देखो। इट इज नोन एज 3C2E। अगेन दिस which type of bridge bond, तो क्या बताया मैंने, 3C2E। अब ये क्या है तो वो ध्यान से देखो। 1 boron atom, another boron atom, this hydrogen atom। तो यहां पे जो बॉन्डिंग हुआ, कितने न्यूक्लियस हुए, बोरोन का एक न्यूक्लियस, ये बोरोन का एक न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो 3 सेंटर, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे यही यहां पे अट्रैक्ट होते हैं, तो बिटवीन 3 centers there will be 2 electrons are common. Here 3 electrons will be common. So which type of bridge bond is occurred? That is 3C2E type. ओके, चलो और एक थिंग अभी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 100% अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन जस्ट हम बता सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा, जिससे क्या होगा कि अगर ये हाइड्रोजन पूरा यहां पे शिफ्ट हो गया, ध्यान से देखो और एक चीज, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक BH3 था, ये दूसरा BH3 है। अगर मैं ये बोलूं कि ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हुआ, या
तो फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो फिर होगा क्या पता है, यहाँ पे एक BH2 मिल जाएगा और उसका H+ गया तो वो नेगेटिव, और दूसरा BH4 बन जाएगा, एक H+ एक्स्ट्रा आया तो BH4+। या तो फिर इसको हम बोलेंगे ये वाला BH4 बने और ये वाला BH2 1- बने, तो यहाँ पे कंटिन्यूस एंड फास्ट कन्वर्जन होगा। याद करो इसको हम रेजोनेंस नाम देते थे, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं बोल सकते हम, हियर इट इज देयर इज नो रेजोनेंस, बट उसके जैसा, सिमिलर टू रेजोनेंस। और एक चीज, चलो ये कैसे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसा कोई आयन आपको मिलेगा, क्योंकि जब B2H6 वो तो अब तो स्टेबल हो गया ना आफ्टर मेकिंग ब्रिज बॉन्ड, लेकिन ऐसा भी नहीं है। व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ THF, here oxygen makes 2 bonds, so it contains 2 lone pairs। इसका नाम है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ओके, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो, B2H6, अब एक्चुअली ये तो है तो BH3, इसकी एक ऑर्बिटल एम्प्टी, इसकी भी एक ऑर्बिटल एम्प्टी, तो 2 THF मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिएक्ट होंगे, एक मॉलिक्यूल एक लोन पेयर, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा लोन पेयर, जिससे हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स आपको मिलेगा, ऊपर से इंडिकेट करते हैं, जस्ट अ मिनट। इसके साथ ये O+ और इसके साथ भी H और H, तो ऐसा कंपाउंड बनाता है। तब जाके पता चला कि B2H6 जब बनेगा तो फिर उसमें भी क्या होगा, ये जब B2H6 जब फॉर्म होता है तो उस टाइम पे भी हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे वो और भी बॉन्ड बनाएंगे बाय एक्सेप्टिंग द लोन पेयर, क्योंकि ब्रिज बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स फिर भी कम है ना। कौन सा टाइप का था, 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉमन, तो ये माइनस नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं 3C2E। ओके, सो दिस इज द थियोरी ऑफ BH3। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, याद करो, आफ्टर मेकिंग ब्रिज बॉन्ड विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी अकर्ड। सो अब देखो 1 2 3 4 बॉन्ड्स हुए दोनों बोरोन के, तो अब होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल जैसा। टेट्राहेड्रल शेप मैंने लर्न करवाया था अपने गुजरात बोर्ड के लेक्चर में, उसमें 2 हाइड्रोजन, एक याद आया ना मिथेन में, आउटसाइड ऑफ द प्लेन एंड इनसाइड ऑफ द प्लेन, डॉटेड लाइन मतलब इनसाइड ऑफ द प्लेन, डार्क बॉन्ड मतलब आउटसाइड ऑफ द प्लेन, तो वही है, देख लो। और अब उसकी बॉन्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम, तो यहाँ पे हम ये इंडिकेट करते हैं कि बोरॉन हाइड्रोजन ये दोनों ब्रिज बॉन्ड यहाँ पे भी हाइड्रोजन तो ये जो साइड बाय साइड बॉन्डिंग है ना, उसको हम बोलेंगे साइड बाय साइड बॉन्डिंग, दिस इज नोन एज टर्मिनल बॉन्ड। अगेन दिस वन इज टर्मिनल बॉन्ड। ओके, और जो बीच में जो मिडल में है ना, दैट इज ब्रिज बॉन्ड। ओके, चलो ये पहले तो पोजीशन आपको समझ में आ गया, तो अब ये याद रखना है यहाँ पे कि कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो याद रखो DBH टर्मिनल बॉन्ड जो है, TB मतलब टर्मिनल बॉन्ड, इज लेस देन D मतलब डिस्टेंस बिटवीन B एंड H, दैट इज अ बॉन्ड लेंथ। ब्रिज बॉन्ड, तो ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मतलब स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हुई, तो टर्मिनल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है ना उनके बीच में, इसलिए। ओके, तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो पहले कोई भी एक साइड का बॉन्ड पहले ब्रेक होगा जनरली, उसके बाद ये हाइड्रोजन वाला ब्रेक होगा। ओके, तो जब B2H6 में जब बॉन्डिंग ब्रेक होगा, जब कोई भी बॉन्ड, तो इस तरीके से होगा, पहले होगा ये ब्रिज बॉन्ड, उसके बाद फिर टर्मिनल बॉन्ड BH बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस एक्चुअली नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन ये सब क्वेश्चंस नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जनरली A और R टाइप के जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, एसोसिएशन रीजन, तो इसमें ये आपको काम लगेगा। ओके, अब गुजरात अपने सॉरी JEE की बात करें तो JEE में ये फंडामेंटल हमें याद तो रखना ही है। ओके, लेकिन स्पेशली ये जो टॉपिक है वो नीट के लिए ज़्यादा प्रीफर मैं करता हूँ, मैं अपनी तरीके से, बराबर। हर एक टीचर का कोई अपना पर्टिकुलर टेस्ट होता है कि भाई JEE है तो फिर वो जनरली न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, और नीट में जनरली ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। उसमें मेन थिंग नीट और JEE देखा तो यही जाता है कि आप कैसे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं JEE में, और नीट में आपको कितने फंडामेंटल्स आपको याद रह जाते हैं एक बार में, क्योंकि एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट्स और सब फंडामेंटल्स 2 साल आपने जो पढ़ा वो सिर्फ ओनली इन 3 आवर्स। यहाँ पे भी 2 साल में जो आपने पढ़ा वो 3 आवर्स में आपको दिखाना होता है आपका परफॉर्मेंस। ओके, तो बस अब देखो, अब ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे दिसंबर में। ओके, और 11th का टॉपिक है, तो फिर ये आप 1.5 मतलब 1.5 ईयर्स के बाद जो एग्ज़ाम आएगी उसमें ये काम लगेगा। अब अगर 12th वाले ये पढ़ रहे हैं तो फिर 12th की बात करें तो 6 महीने के बाद आपकी एग्ज़ाम आएगी, 3 to 4 मंथ्स के बाद, तो फिर ये फंडामेंटल आपको याद रहना ही चाहिए। ओके, चलो कंटिन्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ये तो एक ही हुआ, अब दूसरी बारी आती है BeH2 की। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा, जब भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, मतलब लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्टेट में, तब जनरली ब्रिज बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। तो उसका एग्जाम्पल है BeH2। चलो अब इसकी बारी, तो बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम 2, 2s2, 2s2 ओनली, सॉरी। लेकिन जब बेरिलियम एक्साइट होगा, यह है ग्राउंड स्टेट, अब एक्साइटेड स्टेट, तो उसमें क्या होगा, हीलियम 2, 2s1, 2p1। तो अब होगा क्या, BeH2 2 हाइड्रोजन एटम्स है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन भी बोलो कौन सा हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहां पे sp, तो यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, मीन्स कितनी, ओनली 2 ऑर्बिटल्स। तो अब मैं BeH2 ऐसे लिख रहा हूं, Be हाइड्रोजन, इसकी 2 ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट है, देख लो 2 ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट हुई ना। दूसरा Be इंडिकेट करो, उसके भी 2 ऑर्बिटल्स। तो चलो अब ये वाली ऑर्बिटल्स हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहां पे, ये वाली ऑर्बिटल्स अभी निग्लेक्ट करो। तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है वो क्रॉस होगा, और फाइनली मिलेगा क्या हमें, BeH। फिर एक ही हाइड्रोजन बचता है यहां पे, तो वो सीधा ड्रॉ कर दो। ओके, यहां पे भी H, BeH, और तो चलो पहले लीनियर शेप था BeH2 का, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp,
और लीनियर शेप होगा उसका। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक ऑर्बिटल पार्ट ले रही है तो sp2, और अभी भी स्टिल शेप इज अ प्लेनर। कौन सा प्लेनर, ट्राइंगुलर, लेकिन प्लेनर शेप हुआ इन शॉर्ट। अब यहां पे और एक ऑर्बिटल थी, पता है ना, तो Be2H4 तो पॉसिबल है ही यहां पे, और एक चीज पॉसिबल है, दैट इज BeH2 n times, and this is known as polymeric beryllium hydride. Polymeric hydride, n टाइम्स मतलब इसकी बहुत लॉन्ग चेन मिलती है। और कैसे बनेगी, तो चलो अभी मैंने बताया BeH2, चलो एक बार ड्रॉ कर देता हूं अगेन, BeH2 BeH2 पॉलीमरिक बनने का रीजन भी आपको पता चल गया। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी, हर एक की 2। ओके, और बनेगा कैसे, ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, ये यहां पे, ये यहां पे, यहां पे, यहां पे, अब ये आगे ज्वाइन होगा, अब ये भी आगे वाला ऑर्बिटल्स यहां पे आएगा। तो फाइनली बना क्या, जब BeH2 होगा, तो अब हमें याद रखना है ये BeH, BE, ओके, बॉन्डिंग। अब इसके बाद आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अब बॉन्डिंग अगेन, ओके, फिर वापस नॉर्मल बॉन्ड्स, फिर वापस यहां पे नॉर्मल बॉन्ड, अब उसके बाद अगेन डॉटेड। और अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, जब BeH2 पॉलीमेरिक हुआ, तो पॉलीमेरिक के लिए होगा कौन सा, sp3, टोटल 4 बॉन्ड्स। और टाइप कौन सा होगा, अगेन ये जो ब्रिज बॉन्ड बना यहां पे, उसका टाइप कौन सा, हाउ मेनी सेंटर्स आर देयर, 3C, और इलेक्ट्रॉन्स कितने कॉमन हुए उनके बीच में, ओके, तो यहां पे भी होगा 3C2E टाइप ब्रिज बॉन्ड। और एक एग्जांपल, तो अब मेन यहां पे याद क्या रखना है, पता है इसकी समरी क्या है, BeH2 उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, Be2H4 उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और BeH2 n टाइम्स उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो कोई तो यही सोचेगा तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है, बट इट्स नॉट। बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, BeH2 का sp, Be2H4 का sp2, और BeH2 n टाइम्स का sp3। ये दोनों प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है। ओके, नेक्स्ट। अब बारी आती है BeCl2 की। BeCl2, तो BeCl2 में क्या होगा, ध्यान से देखो, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड,
Okay, so in BeCl2 again beryllium, it contains 2 lone pairs. Okay, and here chlorine contains 3 lone pairs. Here also chlorine contains 2 lone pairs, another molecule of BeCl2. So whenever Be2Cl4 is obtained, at that time here the breach bonding is possible by the donation of lone pair. Still orbital is empty. Here also 3 lone pairs are present for chlorine. I think it is understood for you. And here this pair is shifted towards the empty orbital of beryllium of first molecule. अगर इसको हम 1 नंबर दे 2 नंबर दे तो lone pair of the chlorine of first molecule is donated to the empty orbital of beryllium of the second molecule. सेकेंड में जो BeCl2 का जो Cl उसकी लोन पेयर वो डोनेट होगी कहाँ पे? फर्स्ट मॉलिक्यूल के बेरिलियम के एम्प्टी ऑर्बिटल में, जिससे क्या बनेगा यहाँ पे अगेन BeCl, चलो ये Cl नॉर्मल, अगेन इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। और जब भी बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा देख लो, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट हो रही है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसको हम बोलेंगे डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, CCB शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और बाकी का Cl एज इट इज। अब दोनों बेरिलियम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे ब्रिज बॉन्डिंग कौन से टाइप का होगा? सेंटर्स कितने? 3 सेंटर्स। और इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो देखो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन एज इट इज है और इसकी लोन पे डोनेट हुई तो और टोटल यहाँ पे हुए 3C4E टाइप ब्रिज बॉन्ड। तो इतना तो पता चल गया, जब भी हाइड्रोजन होगा तब 3C2E ही होगा, जब हाइड्रोजन होगा तब। ओके, और कोई विथ लोन पेयर वाला कोई एलिमेंट जब भी होगा, जब हेलोजन होगा तब उस टाइम पे जनरली 3C4E टाइप का होगा। चलो ये तो क्लियर हो चुका होगा आपका। तो जब भी लोन पेयर होगा तब, यहां पे तो X मैंने लिखा है हैविंग लोन पेयर, तो वो लोन पेयर अट्रैक्ट होती है। ओके, हियर लोन पेयर इज डोनेटेड, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट एंड नाउ लास्ट एंड फाइनल, अब इसके जैसा ही यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसके जैसा ही अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले 2 Cl एज इट इज, क्योंकि 2 लोन पेयर 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी थी ना, दैट्स वाई। चलो एक नॉर्मल बॉन्ड, ये हो गए लोन पेयर्स। ओके, यहाँ पे कंटिन्यूस लॉन्ग चेन मिलेगी, तो यहां पे भी आपको मिलेगा BeCl2n टाइम्स, जैसे BeH2 मिला ना। अब हाइब्रिडाइजेशन बोल दो कौन सा होगा? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बोलो? बेरिलियम का। तो यहां पे बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, same as BeH2n times. ओके, सेम फिर नॉर्मल बॉन्ड्स। हाँ, और एक चीज यहाँ पे आपको एरोज करने हैं।
Arrow indicates coordinate covalent bond. आगे कंटिन्यूस ऐसे लॉन्ग चेन चलती रहेगी. ओके, और हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे sp3 और ये नॉन प्लेनर होगा. चलो, तो ये बात हुई PeCl2 एंड फाइनल एग्जांपल, और फिर लास्ट में एक समरी लिखेंगे. I2Cl6. In actual, I2Cl2 is a combination of two ICl3 molecules. Okay, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से अटैच्ड है. So these compounds are known as interhalogen compounds. Interhalogen compounds. अब इसमें क्या होगा? अब आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 53. चलो, अब कंप्लीट यहां पे आता है क्या? क्रिप्टॉन 36, उसके बाद 4d10, तो 36 एंड 10 46, टोटल 53 है. तो अब उसकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अप्लाई होती है, दैट इज ns2np5, मतलब और 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे 53 हो गए ना. तो अब आएगा 5s में 2 और 5p में 5. ओके, अब क्या होगा? अब देखो, इसकी 5d ऑर्बिटल एम्प्टी है. ओके, अब आयोडीन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? 3. तो 3 बॉन्ड्स कैसे पॉसिबल हो गए? तो वो देख लो, जब आयोडीन इन स्पेसिफिक कैटलिस्ट या तो फिर स्पेसिफिक हीट पे, मतलब स्पेसिफिक हीट अगर हमने तब तक उसको हम हीट करें, जिससे क्या होगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 5p टू 5d. और इससे क्या होगा? चलो, अब मैं मेन लिख रहा हूं, क्रिप्टॉन 36 और 4d10 अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, तो सिर्फ 5s2, उसके बाद 5p में 4 और 5d में 1. Okay, and then now remember that here there are 3 unpaired electrons, so at that time 3 chlorine atoms, at that time 3 chlorine atoms will share 1 electron. 3 chlorine atoms will share 1 electron to get ICl3. ओके, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 होगा. जस्ट मिनट, d2 एक ऑर्बिटल अभी भी एम्प्टी, एक ऑर्बिटल एम्प्टी गिनेंगे, और सब ऑर्बिटल्स अगर हम कैलकुलेट करें तो तब ये समझ में आता है कि यहां पे आयोडीन पे होगा क्या. तो ध्यान से देखना, एक Cl नॉर्मल, दूसरा भी एक Cl नॉर्मल, एक क्लोरीन तीसरा, उसके पास 3 लोन पेयर्स और 2 लोन पेयर्स एक्स्ट्रा. One is outside of the plane, another is inside of the plane. ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल, और एक ऑर्बिटल इनकम्प्लीट, पता है ना ये. सिमिलरली दूसरा एक, चलो इनकम्प्लीट, आउटसाइड ऑफ द प्लेन, इनसाइड ऑफ द प्लेन, और बाकी के 3 Cl. फर्स्ट Cl जिसमें 3 लोन पेयर्स और 2 Cl आउटसाइड. तो अब होगा क्या? चलो, समझ में तो आ गया होगा. दैट लोन पेयर is donated here and this lone pair is donated here, and finally we are getting I2Cl6.
in which iodine outside of the plane, here there is a lone pair, inside of the plane again lone pair, Cl 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 Cl, I इसके पास भी दो लोन पेयर्स, वन होगी आउटसाइड ऑफ द प्लेन, दूसरी होगी इनसाइड ऑफ द प्लेन। और दो Cl एज इट इज। और बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग कौन से टाइप का हुआ? अगेन तो यहां पे हुआ 3 सेंटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन bridge bond. Okay, so this is the structure of I2Cl6. तो अब आज जो हमने पूरा पढ़ा उसका एक अब फाइनल उसकी समरी। और कौन सा कंपाउंड होंगे? तो पहले हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स इन विच सच ब्रिज बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, नेचर ऑफ बॉन्ड मीन्स कौन से टाइप, नेचर ऑफ ब्रिज बॉन्ड मतलब 3C 2E 3C 4E। ओके, अब वो प्लेनर है तो उसके लिए हम P लिखेंगे, और नॉन प्लेनर अगर होगा तो उसके लिए हम NP लिखेंगे। ओके, चलो फर्स्ट इज Al2Cl6, तो इसमें 3C4E है, चलो पता चल गया होगा, क्लोरीन लोन पेयर होगी दैट्स वाई 4E, और ये है नॉन प्लेनर। ओके, जो हमने नहीं पढ़ा है ना अभी बस उसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सेम Al2Cl6, Cl के जगह पे Br लिख दो, Al2Br6 अगेन 3C4E, और ये भी NP। Cl is halogen, Br is also halogen. Then AlH3n times, then it is 3C2E और NP। और अगर मैं Al2H6 लिखूं तो ये होगा 3C2E सेम बट होगा प्लेनर। ओके, देन Al2I6, चलो उसके जैसा ही 3C4E और नॉन प्लेनर। देन लास्ट एंड फाइनल Al2CH36, here there will be 3C2E। ये जो CH3 है ना इसका नाम है मिथाइल, इट इज हेक्सामिथाइल एल्यूमिनियम। ओके, तो उसमें 3C2E होगा, C फॉर नॉट कार्बन मीन्स सेंटर। ओके, और ये होगा नॉन प्लेनर। ओके, सिर्फ प्लेनर तो फिर एक ही आया है यहाँ पे, बाकी सब लिखे। लास्ट कमेंट सेक्शन में बताओ कि फिर क्यों ऐसा होगा, अपनी तरह के रिसर्च करके, और जो भी आपने पढ़ा है पूरा लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो 110% आपको समझ में आएगा ही। ओके, तो ये ब्रिज बॉन्डिंग टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, ब्रिज बॉन्डिंग। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फिर आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, देन गुड बाय।